Okay, Ji, today we are going to start with our new topic, that is linguistics. In our previous sessions, we discussed in detail what does it mean by language. And there we briefly discussed about some of the features of language as well, how language can be defined. So right now we are going to define the term linguistics because, as I've already told you, the person who studies language is called linguist, and the branch of study and the branch which studies language, branch of knowledge which studies language is called linguistics. So we must accept this phenomena that linguistics is basically a growing and interesting area of study. ये बहुत ही you can say अहम और बहुत दिलचस्प फिनोमिना है और ये ओवरलैप करता है you can say diverse field of knowledge के साथ ये ओवरलैप कर रहा है. Like जब हम लोग बात करते हैं linguistics की, we talk about education, talk about anthropology, sociology, language teaching, cognitive psychology. Cognitive psychology, that's directly linked to our mind, the mental faculties and philosophy. वो तमाम पैरामीटर्स हैं जो मोर और लेस लिंग्विस्टिक्स के साथ हम लोग कैरी करते हैं, इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है. और हम लोग ये देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो मोर और लेस इन तमाम ब्रांचेस ऑफ नॉलेज के साथ कनेक्ट करता है. जब आप इस वर्ड को, जो वर्ड लिंग्विस्टिक्स है, ये असल में ड्राइव किया गया है दो लेटिन अल्फाज से. एक इसमें यू कैन से रूट वर्ड है जिसको लिंगुआ, और जो दूसरा है वो बुनियादी तौर पर सफिक्स है, इस्टेक्स. तो लिंगुआ का मतलब टंग. वैसे अगर आप जो है वो लेटिन लैंग्वेज के अंदर लिंगुआ डिफाइन करें तो दैट्स द फिजिकल ऑर्गन which moves into your buccal cavity, that is called lingua. लेकिन यहां जब हम लिंग्विस्टिक्स में बात करेंगे, we are not talking about the anatomical part, the anatomical you can say structure of that organ. We are basically talking about related to tongue, कि जो उस जुबान से मुतल्लक है, that would be called lingua. और aesthetics, it's a very simple term, it's in a science or knowledge.
anything, the science of tongue, knowledge of tongue will be called linguistics. तो क्या हमने जुबान जो फिजिकल ऑर्गन है उसकी बात कर रहे हैं? नो, द साइंस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि जुबान से ही जो आपका फिजिकल जो टंग है उसी से ही आपकी लैंग्वेज का नाम है। तो इसी वजह से जब आप टंग की बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली we shall have to denote the concept as language. So anything which is associated with language is called, I must say you people, science or scientific knowledge of language. Suppose जब आप बात करते हैं कि that something is science, तो हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा कि साइंस क्या है। आगे जाके बहरहाल मैं इस टर्म को भी इंशाल्लाह डिफाइन कर दूंगा आपके साथ। एनी नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन क्लियर सिस्टमैटिक एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग, हर वो इल्म जो कि सिस्टमैटिक हो, रैशनल अंडरस्टैंडिंग पर बेस करता हो और क्लियर हो, वो साइंस कहलाता है। यहाँ एक बात की और तस्दीक करना भी जरूरी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है वो साइंस नहीं है। रादर आई मस्ट से यू पीपल के असल में वो मेथड ऑफ इंक्वायरी जिसके जरिए आप नताइज अखज़ करते हैं वो साइंस कहलाता है। साइंस बुनियादी तौर पर मेथड ऑफ इंक्वायरी का नाम है। व्हेन यू लॉजिकली, रैशनली, scientifically, systematically, when you prove a thing that is we call science. And science is a name of action, not a subject. What do we mean by science? बुनियादी तौर पर नाम है एक्शन का, करके दिखाने का। और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि साइंस जो है वो करके दिखाना नहीं, बल्कि जनाब हम किसी को लेबलाइज कर दें, किसी सब्जेक्ट को लेबलाइज कर दें कि ये साइंस है, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारा ट्रैक गलत हो जाएगा। इस वजह से ये अज हद जरूरी है कि सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि साइंस है क्या। So it is not, you can say, related with a subject, rather it is related to the method of inquiry. Etymologically, linguistics is scientific study of language. Linguistics क्या है? Scientific study of language। और linguist जो है वो scientist हैं जो scientific method को apply करते हैं। To question about the nature and functions of language, कि जो nature और functions of language के हवाले से सवाल उठाते हैं। Questions about nature and functions of language। तो linguistics scientific study है और linguist वो scientist हैं who apply scientific method। ये जुबान क्या है, जुबान के फंक्शंस क्या हैं, हाउ यू कैन से कि ये मतलब जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल कम्युनिकेशन में क्या फर्क है, ये वो तमाम चीजें हैं जो बुनियादी तौर पर जो है वो लिंग्विस्टिक्स के साथ एसोसिएटेड। बाय दिस वी मीन लैंग्वेज इन जनरल, नॉट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। यहाँ ये भी एक बात बड़ी क्लियर करने वाली है कि यहाँ हम लैंग्वेज से मुराद कोई एक जुबान की बात नहीं कर रहे, बल्कि all the languages which are spoken in this world,
are, you can say, attached to this phenomenon. Not particular. By this we mean language in general, not a particular language, कि वो एक particular language नहीं बल्कि वो एक general language, मतलब ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अफ्रीकन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। गर्ज के इस वक्त दुनिया में इस जो ओवर जो है वो मोर देन 6,000 जो है वो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो उन तमाम लैंग्वेजेस की बात हो रही है। तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो फर्स्ट यूज्ड इन मिड 19th सेंचुरी। ये जो टर्म है लिंग्विस्टिक्स, पहली मर्तबा ये कमोबेश आज से 150 पौने 200 साल पहले इस टर्म का पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ। और इससे कबल इस फील्ड को फिलॉलॉजी कहा जाता था। फिलॉलॉजी, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। ये बुनियादी तौर पर इसके लिए जो टर्म यूज की जाती थी, दैट वाज फिलॉलॉजी। और ये एक्सट्रीमली ब्रॉड फील्ड है जिसमें ग्रामर मौजूद है, फोनोलॉजी मौजूद है, सिमेंटिक्स मौजूद है और सोशो लिंग्विस्टिक्स मौजूद है। गर्ज के कौन सी ऐसी सेंस है जो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो कंपैरेटिवली वी मस्ट से कि ये बहुत बड़ी मतलब जो है वो फील्ड मानी जाए। लिंग्विस्टिक्स जो लिंग्विस्ट हैं वो फॉर्मल स्टडी करते हैं ऑफ स्पीच, साउंड्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड मीनिंग अक्रॉस 6,000 लैंग्वेजेस या क्रॉस मोर देन 6,000 लैंग्वेजेस जो दुनिया भर में बोली जाती हैं, स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं हिस्ट्री एंड चेंजेस विद इन अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है वो क्या थी, आज से 200 साल पहले लैंग्वेज कैसी, आज कैसी है और उनमें क्या तब्दीलियां आई। फिर changes within language families and how language is acquired when we are infants। कि जब एक बच्चा infant जो है वो अपनी अर्ली एज में लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करता है, वो कौन सा सिस्टम है जो लैंग्वेज को एक्वायर करने में उसको मदद काम करता है। लिंग्विस्ट न सिर्फ यहां तक बल्कि ये रिलेशनशिप एग्जामाइन करते हैं रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज का, और वो बुनियादी तौर पर ये देखते हैं कि किस तरह से रिटन लैंग्वेज और जो स्पोकन लैंग्वेज जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे है। मसलन सपोज वो जो आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द लैंग्वेज है कि कॉन्सेप्ट का जो सिंबल्स हैं, वर्ड जो हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये किस तरह से मुमकिन है। और न्यूरल स्ट्रक्चर्स और किस तरह से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारा जो ब्रेन है वो हमें क्यों कर मदद करता है कि हम लैंग्वेज बोल सकें, हम लैंग्वेज को मतलब जो है वो अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग कैरी करते हैं विद लैंग्वेज। सो फंडामेंटली linguistics is concerned with the nature of language। तो linguistics जो है वो nature of language के साथ मतलब जो है वो जो है वो एसोसिएट करती है और कम्युनिकेशन। तो इन शॉर्ट अगर आप बात कर लें, आप आसान लफ्जों में बात कर लें, तो हमें ये बात माननी होगी कि जो लिंग्विस्टिक्स है वो बुनियादी तौर पर concerned है with the nature of language and communication। लेकिन it is quite necessary कि कुछ definitions जो हैं वो हम लोग पहले डिस्कस कर लें कि linguistics बुनियादी तौर पर क्या है, different linguists ने इस ब्रांच को किस तरह से डिफाइन किया। उसमें सबसे जो पहला मतलब जो शख्स जिसकी हमारे सामने डेफिनेशन मौजूद है वो सबसे पहला जो नाम है वो जी डफी का।
जी डफी के ख्याल में linguistics observes language in action. linguistics क्या करती है? लैंग्वेज को ऑब्जर्व करती as means of determining how language has developed, how it functions today, and how it is currently evolving. ये आज किस तरह से, मतलब कुछ चीजें जो हैं कि सबसे पहला लैंग्वेज इन एक्शन, कि लैंग्वेज इन एक्शन कैसे है, डेवलप कैसे हुई, हाउ इट फंक्शंस टुडे, ये आज काम कैसे करती है, एंड हाउ इट इज करंटली evolving, इट इज करंटली। ये वो चीजें हैं जो जीडब्ल्यू के ख्याल में हम लिंग्विस्टिक्स में बहस करते हैं। लैंग्वेज इन एक्शन, सोसाइटी लैंग्वेज कैसे बोल रही है, और आज की इस जुबान को डेवलप होने में कितना अर्सा लगा, कितना समय दरकार था कि लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो सके। फिर ये फंक्शन कैसे करती है आज, हाउ डज इट फंक्शन, ये कैसे चलती है, और ये आज इवॉल्व कैसे हो रही है, हाउ इट इज करंटली इवॉल्विंग। ये वो पैरामीटर्स हैं जिनके जरिए हम लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या है। तो जब भी अब हमसे पूछा जाए कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, तो नंबर एक, लैंग्वेज इन एक्शन, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस, हाउ डज इट फंक्शन, एंड हाउ इट इज करंटली इवॉल्विंग। ये वो कुछ चार चीजें हैं जो जीडब्ल्यू के ख्याल में लिंग्विस्टिक्स के साथ एसोसिएट। उसके बाद पिट कॉर्डर, एस पिट कॉर्डर, उसका ख्याल है कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो बुनियादी तौर पर किस चीज को बहस करता है, नेचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, हाउ इट इज लर्न, and what part it plays in individual and community। इसने भी तीन अहम चीजों के ऊपर सवाल उठाया है। नंबर एक, कि नेचर जो है, नेचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, कि हाउ डू वी एक्वायर, व्हाट इज द रोल ऑफ, यू कैन से, लैंग्वेज, हाउ डू वी ह्यूमन बीइंग्स लर्न दिस लैंग्वेज, how you can say genetically fit device in us that is called language, या लैड जिसको आप कहते हो, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो किस तरह से काम करती है, and what part it plays in the life of the individual and the community, और ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी की लाइफ में क्या किरदार अदा करती है। ये वो पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग एसोसिएट किसके साथ करते हैं, लैंग्वेज के साथ, लिंग्विस्टिक्स के साथ। कि हमारी सोसाइटी में अगर लैंग्वेज ना हो तो फिर हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, ये एक फर्द को और कम्युनिटी को किस तरह से और क्यों कर, मतलब जो है वो बेनिफिट पहुंचाए। तो ये वो अहम तीन सवालात हैं जिनके जवाबात लिंग्विस्टिक्स तलाश करने की कोशिश करें। उसके बाद जीन एचिसन के ख्याल में लिंग्विस्टिक्स आंसर करती है दो बुनियादी सवालों को। नंबर एक, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, और नंबर दो, हाउ डज लैंग्वेज वर्क, लैंग्वेज काम कैसे करती। देखिए, दो अहम तरीन जो कि लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज द फिनोमेना,
ऑफ लैंग्वेज। और दूसरे नंबर पर जो सवाल मतलब जो है वो किया जाता है, वो किया जाता है कि हमें मतलब जो है वो ये देखना होगा कि लैंग्वेज फंक्शन कैसे करती है, लैंग्वेज के काम करने का असूल क्या है। सो ये वो मैटर्स हैं जो बुनियादी तौर पर लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड। और जीन एचिसन जो है वो इस हवाले से मतलब ये सवाल उठाता है कि अगर लिंग्विस्टिक्स के हवाले से बात की जाएगी तो वो बुनियादी तौर पर इन्हीं इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो बात होगी। और अगर यही दो एलिमेंट्स हम लोग डिफाइन कर लें, ऑटोमेटिकली लैंग्वेज का जो मतलब है वो हम आसानी से मतलब जो है वो बतला सकते हैं। उसके बाद विक्टोरिया ए फ्रॉमकिन, विक्टोरिया ए फ्रॉमकिन के ख्याल में द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। कि जब ह्यूमन लैंग्वेज को आप किस तरह से डिस्कस करेंगे, साइंटिफिकली। कि जब आप साइंटिफिकली चीजों को एंगेज करेंगे, जब आप साइंटिफिकली आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे लैंग्वेज के हवाले से, तो दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। फिर हम उसको लिंग्विस्टिक्स के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग आसानी से अब कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक्चुअली जब हम बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या है, तो फिर हमें इन डेफिनेशंस को मद्देनजर रखना होगा कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो किस चीज के ऊपर जो है वो बहस कर रही है। लिंग्विस्टिक्स का जो बेसिक एरिया है वो फिर क्या, तो फिर लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। और मैंने ये पहले भी आपसे बात की है कि लैंग्वेज इन जनरल, नॉट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। कि हम लैंग्वेज इन जनरल की बात कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। और इफ वी आर concerned with studying an individual language, would say I'm studying French, English, or whichever language we happen to be studying. But linguistics does not study an individual language. जो linguistics है वो लैंग्वेज इन जनरल को मतलब जब वो बैठता है। तो फिर रॉबिन्स के ख्याल में linguistics is concerned with human language as universal and recognizable part of human behavior and human faculties. Perhaps one of the most essential human life as we know it, and one of the most far-reaching for human capabilities in relation to the whole span of mankind's achievements. तो राबन की जो लिंग्विस्टिक्स के हवाले से जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये कंसर्न्ड है विद ह्यूमन लैंग्वेज एज अ यूनिवर्सल एंड रिकॉग्नाइजेबल पार्ट, यूनिवर्सल एंड रिकॉग्नाइजेबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। कि इंसानी रवैया लैंग्वेज की मौजूदगी में कैसे होता है। Human faculties, perhaps one of the most essential to human life. Language is very much essential to human life as we know it, and one of the most far-reaching of human capabilities in relation to the whole span. और अगर हम पूरी इंसानियत की अचीवमेंट्स एक साइड पर रख रहे हैं तो हम लोग ये आसानी से कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है ये मोर और लेस जो है ये हमारी दुनिया के अंदर की जो जितनी आज अचीवमेंट्स हैं ये सारी की सारी सिर्फ इसी लैंग्वेज के सहारे थे। तो there is no way of studying language without referring to and taking examples of particular language. ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको जब आपको लिंग्विस्टिक्स कैरी करना है तो फिर आपको मुख्तलिफ जबानों में से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स जो है वो कोट करनी होगी। However, even while doing so, the emphasis of linguistics is different. Linguistics does not emphasize practical knowledge or mastery of a particular language. कि आपको इसका काम, लिंग्विस्टिक्स का काम ये नहीं है कि इसने आपको अंग्रेजी सिखानी है, इसका काम ये नहीं है कि इसने आपको उर्दू सिखानी है, इसका काम नहीं है कि इसने आपको ग्रिप देनी है फ्रेंच लैंग्वेज पर।
linguistics may know only one language, or may now several, or may even study a language they do not know at all. कि मैं एक ऐसी जुबान के हवाले से, मतलब सपोज कि मुझे नहीं पता जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेजेस कैसी बोली जाती हैं या लिखी जाती हैं, या लाइक व्हाट चाइनीज कैसे लिखी और बोली जाती है, लेकिन इसके बावजूद इफ आई एम स्टडिंग चाइनीज लैंग्वेज देन अल्टीमेटली आई एम अ लिंग्विस्ट। तो फिर मैं ये नहीं होगा कि मतलब कि मैं एक जुबान या कई जुबानें जो मैं जानता हूं उनके ऊपर स्टडी कर रहा हूं तो तभी मैं लिंग्विस्ट होऊंगा, नहीं। आप एक ऐसी अजनबी जुबान के ऊपर भी काम करके लिंग्विस्ट बन सकते हैं जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते। तो what they are trying to study are the ways in which language is organized to fulfill human needs as a system of communication. So there is difference between a person who knows many languages, के ये फर्क होता है उस शख्स के दरमियान कि जो कई जुबानें जानता हो, जिसको आप पोलीग्लॉट कहते हैं, एंड अ लिंग्विस्ट हु स्टडीज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। हम पोलीग्लॉट्स नहीं है। बीइंग लिंग्विस्ट वी आर नॉट पोलीग्लॉट, रादर व्हाट वी आर, वी डू स्टडी लैंग्वेजेस इन जनरल, और हम लैंग्वेज की उस ऑर्गेनाइजेशन को, लैंग्वेज के बिहेवियर को, रेफरेंस ऑफ सम एक्चुअल लैंग्वेजेस आर लैंग्वेज के हवाले से हम लोग जो है वो मतलब जो है वो बात कर रहे होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या कुछ लैंग्वेजेस के साथ हम मतलब जो है उनको डील कर रहे होते हैं जिनको हम शायद उनमें से कुछ लैंग्वेजेस को हम नहीं जानते। तो any language can be taken up to illustrate the principles of language organization. कोई भी आप जुबान उठा लें, पंजाबी उठा लें, सिंधी उठा लें, बलूची उठा लें, पश्तो उठा लें, क्योंकि तमाम लैंग्वेजेस जो हैं वो जो यूनिवर्सल ऑफ लैंग्वेज है वो उनको जाहिर करती है। यानी कि एक लैंग्वेज के अंदर जिसको आप कहते हैं ना कि देयर आर सम यूनिवर्सल्स ऑफ लैंग्वेज कि जो दुनिया की तमाम जुबानों के अंदर कॉमन है, लाइक व्हाट, सबके अंदर फोनोलॉजी अपनी होगी, सबकी ग्रामर अपनी होगी, सबका सिमेंटिकल स्ट्रक्चर अपना होगा, सबका सोशो जो एथनोलिंग्विस्टिक्स के जो पैटर्न्स होंगे वो अपने होंगे। तो यहां पर उन पैटर्न्स को, उस फेनोलॉजी को हम लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दीगर लैंग्वेजेस के ऊपर। तो वो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। We can say that linguistics is learning about language rather than learning a language. कि लैंग्वेज के हवाले से जानना है, किसी एक लैंग्वेज को सीखना नहीं है। So that this distinction is often explained as the difference between learning how a car works and learning how to drive a car. कि कार कैसे चलती है, आपने कार चलानी, ड्राइवर नहीं बनना, आपने ये सीखना है how a car works, कार काम कैसे करती है। You are not supposed to sit on the driving seat. When we learn how to drive a car, we learn a set of habits and do some practice. This is similar learning how to speak a language. कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं कार को तो अल्टीमेटली ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक लैंग्वेज के प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन जब आप ये सीख रहे हो कि हाउ द कार वर्क्स, वी ओपन अप इट्स मैकेनिज्म, कि हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसके इंजन का काम देखते हैं, हम इसके मतलब जो है वो स्टीयरिंग का काम देखते हैं, स्टडी इट एंड इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट्स टू अनदर। This is similar to what we do in scientific study of language or linguistics. We investigate the mechanism of language, its part, कि language के parts कौन से होते हैं, and how all these parts fit together to perform particular functions. कि वो कैसे, मतलब suppose मेरे मुंह से निकलने वाले अगर अल्फाज आप उसको semantically आप उनके मीनिंग नहीं जान पा रहे तो फिर मेरा ये सब कुछ बोला हुआ जो है वो बेकार जाएगा। तो हमने लैंग्वेज के अंदर यही देखना है कि हाउ द साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड, और वो अरेंज कैसे की जाती हैं, हाउ दे आर पुट इनटू टुगेदर, कि उनको कैसे एक साथ रखा जाता है। जस्ट एज व्हाइल ड्राइविंग अ कार वी आर यूजिंग इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, और व्हाइल स्पीकिंग अ लैंग्वेज वी आर यूजिंग द साउंड वर्ड्स एटसेट्रा ऑफ दैट लैंग्वेज। बिहाइंड दीज यूजेस इज द मैकेनिज्म, कि जनाब आपने किस तरह से साउंड्स को सिमुलेट करना है, which enable us to do. We study language because it is important for us to understand the mechanism. हम लैंग्वेज को इस वजह से स्टडी करते हैं ताकि हम इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर सकें।
तो ये वो ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन एक जो है वो मैंने बिल्ड कर दिया है कि व्हाट इज एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स।